Hello everyone, welcome to the channel. So I hope that everybody is fine and in good health. And as you all know that result aa chuka hai, right? And you all must have seen your results and check your results. So one thing that I feel, as we have discussed also, that cutoff was very high, right? Cutoff for your assistant professor was 168 if I talk about unreserved category, and that for your JRF was around 206. That was a lot. Yes, this is a very big number. एंड इतनी ज़्यादा कट ऑफ आज से पहले कभी भी नहीं गई है. बट now for our future exams, that is the exam that is going to be held in June or any other month, we have to prepare for this particular concept only. We have to keep in mind that cutoff will go इतना ही, मतलब we maybe हो सकता है कि next June में आपकी cutoff will decrease, but what we have to do is in our mind we have to keep this thing only, that cutoff will go around 200. So we have to do a preparation in that way. ठीक है. So first thing first, we'll start with this. We'll be starting with the previous year solution. अब previous year किसका, जो आपका एग्जाम हुआ है अभी 11th मार्च को एग्जाम हुआ था, राइट? 11th मार्च को एग्जाम हुआ था. उसी एग्जाम की PYQs में आज मैं वो इन दिस सीरीज, बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर सीरीज विल बी डिस्कसिंग दिस पेपर जो आपका 11 मार्च को हुआ है. दैट इज इन, सॉरी नॉट मार्च, आई थिंक फेब, मतलब जो आपका फेब 2023 में सीरीज हुई है पेपर की, ठीक है, दैट. सो वील बी डिस्कसिंग दिस पेपर. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस, जो चैलेंज क्वेश्चंस थे वो हम कर चुके हैं, बट अगेन वील बी डिस्कसिंग द अदर क्वेश्चंस, द रिमेनिंग क्वेश्चंस, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस तो बचेंगे ऑब्वियसली. सो वील बी डूइंग इट इन डिटेल. एंड देन व्हाट नेक्स्ट यू हैव टू डू इज, the next thing that you have to keep in mind is you have to study the concepts very nice. Okay, so it's high time that you start studying conceptually. ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी करने हैं और कंसेप्चुअल स्टडी भी करनी है. ठीक है. देन PYQs ऑफ गेट, वो मैंने पहले ही बताया है कि गेट के जितने भी PYQs हैं आपके पास, प्लीज सॉल्व ऑल दोज पेपर्स, बिकॉज इन एवरी CS एग्जाम, जो भी आपका कंप्यूटर साइंस का एग्जाम होता है, चाहे वो निलेट हो, ओके चाहे वो आपका गेट हो, नो नॉट गेट, बेसिकली बार्क हो, इसरो हो, ठीक है, नेट को भी हम थोड़ा बहुत मान सकते हैं, या आपका PGT हो, या फिर आपका वो किसी भी PhD एंट्रेंस एग्जाम हो. ऑल दीज एग्जाम्स आर बेसिकली व्हाट PYQs ऑफ गेट ओनली. ठीक है, ये मैं इतना नहीं इंक्लूड करूंगी, बट दीज विल बी देयर. सो आई विल सजेस्ट एवरीवन कि प्लीज PYQs ऑफ गेट को हाई प्रायोरिटी पे लेके चलो एंड सॉल्व दोज क्वेश्चंस. ठीक है. नेट, इस वाले नेट के एग्जाम में भी जो मैं एग्जाम आज हम द क्वेश्चन दैट विल बी सॉल्विंग, उसमें भी 1 or 2 क्वेश्चंस वर देयर दैट वर फ्रॉम गेट PYQs. ओके, so this you have to keep in mind, that you have to study conceptually and you have to practice all the PYQs, gate के भी, and then PYQs of net also, because that are also important. They can also change the digits and they can give you, so उससे एक आइडिया लग जाएगा आपको. ठीक है. सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करना है, थ्योरी पे भी उतना ही फोकस करना है. कंसेप्चुअल का मतलब यही है कि यू हैव टू फोकस ऑन थ्योरी. ठीक है. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट टू मी ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. कोई भी डाउट है, ऑल योर डाउट्स विल बी रिजॉल्व्ड बाय आवर टीचर्स. ओके. Currently, there's a very amazing offer that is going on regarding UGC NET Computer Science. So, if you want to enroll for the course, you can just install our Android app. For example, this is your Android app. So, you can install from the Google Play Store. And you can see that we have so many different courses that are currently going on. And that's if you want to enroll for UGC NET Computer Science, so that you can see that the test series for UGC NET Computer Science is only 400 rupees. So you can just click on this, so you can find that yes, UGC NET Computer Science test series only for 200 rupees only. So there is up to 80% discount for all these students who want to enroll for this course. And if you want to enroll for UGC NET Computer Science, so you can see there's a very amazing offer that is going on. So in 3-month course, the fees is only 4,999 only. So, and even if, for example, if I go for a 1-year course, so that fees is only 5,999, and for 1-year course the fees is only 7,999. So this is a very amazing offer, and just enroll this course as soon as possible, because this offer is only valid till 30th of April. After this, the fees will hike. So please enroll as soon as possible.
आफ्टर दिस PYQ ऑफ दिस फेब वाला जो एग्जाम है, इसके बाद वी विल बी सॉल्विंग गेट PYQ, है ना, जो गेट का एग्जाम हुआ है फेब में, उसको वी विल बी सॉल्विंग नेक्स्ट आफ्टर दिस वन, आफ्टर दिस नेट वन, ठीक है। तो दिस इज द प्लान फॉर दिस, एंड आई थिंक इट विल टेक थोड़ा टाइम इसमें लग जाएगा, but once we'll finish and then we'll see what next we can do. Moreover, you can give your suggestions in the comment section कि आपको next what you want to study, suggestions आप दे सकते हो comment section में दे सकते हो, and you can also give your suggestions on the टेलीग्राम ग्रुप। तो जो जहाँ पे भी यू आर फीजिबल यू कैन गिव, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जो ऐप सॉरी एंड्रॉयड ऐप है ये, इस एंड्रॉयड ऐप को आप इंस्टॉल कर लो और आप वहाँ से भी कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। अभी रिसेंटली नई टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, तो वो टेस्ट सीरीज भी आप ऐप में देख सकते हो। यू कैन विजिट दिस ऐप, यू कैन डाउनलोड दिस ऐप एंड यू कैन वॉच दीज टेस्ट सीरीज। अराउंड फ्री क्वेश्चन हैं, मल्टीपल क्वेश्चन हैं हर डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। सो आई सजेस्ट एवरीवन कि प्लीज डू इंस्टॉल दिस ऐप एंड डू विजिट दिस टेस्ट सीरीज, ओके। So let's start with the questions. I hope the screen is visible to everyone. Okay. So this was the question that we have already discussed. ये आपका challenge वाला question है. Many of you are having problem, but I think कि ये आप लोग कर चुके हो, and this is what we have already understood this question. तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। निगेशन ऑफ सम स्टूडेंट्स लाइक हॉकी इज, तो ये आप लोग पढ़ चुके हो, ये आपको पता भी होगा कि नन इज द ऑपोजिट ऑफ एटलीस्ट वन। ये मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि अगर नन है तो इसका ऑपोजिट क्या हुआ, द ऑपोजिट ऑफ नन इज एटलीस्ट वन, ठीक है, एटलीस्ट वन इसका ऑपोजिट हो गया। सो इन दैट केस सो इन दैट केस इफ यू हैव सम डॉग्स आर पूडल्स, अगर ये हमारे पास नेगेशन पूछ रहे हैं इसका कि सम डॉग्स आर पूडल्स का नेगेशन क्या होगा, सो नेगेशन विल बी नो डॉग्स आर पूडल्स। सो सम स्टूडेंट्स लाइक हॉकी मीन्स नन ऑफ द स्टूडेंट लाइक हॉकी, क्या हो जाएगा इसका, इसका हो गया नन ऑफ द स्टूडेंट like hockey. So none of the student like hockey, similar to every student dislike hockey. तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा कि every student dislike hockey. Okay. Let me just see one thing. Okay. ठीक है। ओके तो ये क्वेश्चन तो हमारे डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें तो कोई डिस्कस वाला पॉइंट था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमें डिस्कस करना है, दैट इज अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ इंटीजर्स। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि वी हैव दिस टाइप ऑफ थिंग, ये ए रिलेट्स टू बी। तो यहाँ पे क्या होता है, ए इज एन एलिमेंट, किसी भी सेट, मान लो सेट एस है, उसका एक एलिमेंट है ए, और एक सेट है पी जिसका एलिमेंट है बी। सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड कि एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर विद सम कंडीशन। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो कि रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ इंटीजर्स, मतलब कि जो ए और बी हैं आपके, दे आर नॉट जस्ट एलिमेंट्स, दे आर नॉट ऑर्डर्ड पेयर्स, मतलब कि इट विल बी समवॉट लाइक ए कॉमा बी रिलेट्स टू सी कॉमा डी, ऐसे करके, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज योर, दीज आर योर ऑर्डर्ड पेयर्स, ये आपके क्या हो जाते हैं, ये होते हैं आपके ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, अ रिलेशन आर इज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ इंटीजर, I'll just rub it all. So a relation R is an ordered pair of integers such as x comma y relates to u comma v. So क्या हो रहा है कि x comma y is able to relate to u कॉमा v, ठीक है। क्या कंडीशन है, कंडीशन ये लगाई है दैट x इज लेस देन u, मतलब इस x और इस u में कंडीशन है, और नेक्स्ट कंडीशन है कि y इज ग्रेटर देन v, मतलब कि y और u की इन दोनों की कंडीशन है, y और v की, ठीक है। ये दो कंडीशन हमारे को लगाई हुई है। नाउ देर आस्किंग यू कि जो r है, जो रिलेशन r है, ये किस टाइप का रिलेशन है, पार्शियल, नीदर पार्शियल ऑर्डर नॉर इक्विवेलेंस रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर बट नॉट अ टोटल ऑर्डर, टोटल ऑर्डर इक्विवेलेंस, ठीक है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज रिलेशंस, है ना। सो सबसे पहले व्हाट इज अ पार्शियल ऑर्डर, पार्शियल ऑर्डर क्या होता है, पार्शियल ऑर्डर होता है जो रिफ्लेक्सिव हो, करेक्ट, रिफ्लेक्सिव प्लस एंटी सिमेट्रिक, करेक्ट, प्लस ट्रांजिटिव। सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ
पार्शियल ऑर्डर, ये आपकी पार्शियल ऑर्डर की प्रॉपर्टी हो गई। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन? इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए प्लस सिमेट्रिक होना चाहिए प्लस ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो ये आपकी इक्विवेलेंस की रिलेशन प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टोटल ऑर्डर? टोटल ऑर्डर क्या होना चाहिए? टोटल ऑर्डर क्या है? टोटल ऑर्डर इज बेसिकली, टोटल ऑर्डर इज अ पार्शियल ऑर्डर ओनली, ठीक है। पार्शियल ऑर्डर प्लस कंपेरेबिलिटी एक प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है, ठीक है। सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ योर थ्री रिलेशंस गिवन हियर। पार्शियल ऑर्डर क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। व्हाट इज द टोटल ऑर्डर? टोटल ऑर्डर इज रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, मतलब पार्शियल ऑर्डर प्लस कंपेरेबिलिटी। अब यहाँ पे अगर आप देखो, इफ यू सी ओवर हेयर, यहाँ पे यू कैन सी दिस, यहाँ पे क्या कंडीशन है? दैट x इज लेस देन यू एंड y इज ग्रेटर देन यू, राइट? दिस इज द कंडीशन। मतलब अगर इफ आई चेक फॉर रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले व्हाट यू विल चेक? सबसे पहले वी विल चेक फॉर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कि वेदर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी इज बीइंग फॉलोड और नॉट, है ना। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव सेज दैट एन एलिमेंट a इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, देन वी से इट इज रिफ्लेक्सिव, मतलब 1,1 ऐसे मान लो आप, करेक्ट। अब यहाँ पे व्हाट वी आर हैविंग ऑर्डर्ड पेयर्स, सो व्हाट वी कैन से दैट x को हमने माना सपोज 1,2, 1,2 रिलेट्स टू 1,2 ओनली, देन वी कैन से दैट दिस इज रिफ्लेक्सिव। बट यहाँ पे क्या प्रॉपर्टीज हैं? यहाँ पे दे आर सेइंग दैट दिस 1 हैज टू बी लेस देन 1, which is not possible because this is equal to 1. 1 is equal to 1. Similarly, 2 has to be greater than 2. This is also not possible. So over and all, जो reflexive property है आपकी, ठीक है, जो reflexive property है वो fail कर गई यहाँ पे. Why? Because the given definition of relation R is that x is less than u. अगर ये होता कि x is less than equal to u या y is greater than equal to v, in that case reflexive property जो है वो सही हो जाती, because 1 would have been equal to 1 and 2 would have been equal to 2. तो in that case reflexive property would have survived. But यहाँ पे क्या condition है? The condition simply here is that कि x is less than u, right? x is less than u and y is greater than u. So ये जो प्रॉपर्टीज हैं इक्वल टू की प्रॉपर्टी नहीं आ रही है, राइट? यहाँ पे क्या है? सिंपली लेस देन एंड ग्रेटर देन. सो इसीलिए रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी विल फेल ओवर हियर. एंड सिंस रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी फेल हो गई, सो यू कैन सी इट फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज. जब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी फेल हो गई तो पार्शियल ऑर्डर नहीं रहा वो, बिकॉज पार्शियल ऑर्डर में भी रिफ्लेक्सिव चाहिए, इक्विवेलेंस में भी रिफ्लेक्सिव चाहिए, टोटल ऑर्डर में भी रिफ्लेक्सिव चाहिए. सो दिस मीन्स दैट ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 ऑल विल बी फॉल्स. द ओनली करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, neither a partial order nor an equivalence relation. So I hope कि ये बात समझ में आ गई सबको कि कैसे क्या हुआ ये. यहाँ पे सिंपल सी बात है कि इन दिस क्वेश्चन कोई भी जरूरत नहीं है किसी भी प्रॉपर्टी को और फॉलो करने की. सिंपली विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्सिव ओनली आई कैन से दैट रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइंग द रिलेशन, because reflexive property is A relates to A, मतलब an element is relating to itself only. This is what is reflexive. यहाँ पे क्या है कि one ordered pair should relate to itself. मतलब अगर A, B आप एक ordered pair ले रहे हो like this, if A, B is a ordered pair, so A, B should relate to itself. This is what is reflexive property in terms of ordered pairs, but this is not the case over here. So इसीलिए ये जो आपकी equation है, this will become false because reflexive property is not being satisfied. And since reflexive property satisfy नहीं हो रही, इसीलिए जो बाकी properties हैं वो we will not check. Why? Because अगर एक property satisfy नहीं हो रही तो बाकी अगर satisfy हो भी रही है then it does not matter. So it is neither a partial order nor an equivalence relation. So correct answer हो गया इसका option number 1. Neither a partial order nor an equivalence relation. ठीक है? I hope this is clear everyone. In case if you have any doubt in any of the question, please comment section में you can tell or you can write it on the Telegram group. ठीक है? I'll take that question again.
Okay, next question. This question is a bit tricky to understand, but very easy. So I'll explain this particular question in the PPT mode, because I have to draw the diagram to make you understand. Okay, so this is the question. What they're saying: suppose you are married and you and your partner attend a party with 3 other married couples. ठीक है, तो क्या बोल रहे हो यहाँ पे? दे आर सेइंग क्लियरली दैट यू आर मैरिड, ठीक है, एंड यू एंड योर पार्टनर, मतलब 2 लोग तो आप हो गए, राइट, टू, एक आप और आपका पार्टनर, सो एक 2 लोग तो ये हो गए, अटेंड अ पार्टी विथ 3 अदर मैरिड कपल्स, तो और कितने लोग हो गए? ये 3 अदर मैरिड कपल्स, मतलब 6 पीपल ये हो गए, तो एक आप हो गए, 7th और 8th आपकी वाइफ हो गई, या आपके हस्बैंड हो गए, आपका बेटर हाफ हो गया, करेक्ट? सो 8 पीपल्स हैं टोटल इन दिस क्वेश्चन, yes or no? Suppose you are married and you and your partner attend a party with 3 other married couples. So basically कितने married couples हो गए? 4 married couples हो गए, right? 4 married couples हो गए, तो total people कितने हो गए? टोटल पीपल हो गए, अगर हम ऐसे करें 4 times 2, बेसिक से मैथ्स है, 8 पीपल हो गए टोटल, ठीक है. सेवरल हैंडशेक्स टुक प्लेस, नो वन शुक हैंड्स विद हिमसेल्फ और विद देयर पार्टनर, मतलब अगर ए और ए डैश हस्बैंड वाइफ हैं, सो ए जो है वो ना ही खुद से ना ही अपनी वाइफ से हैंडशेक करेगा. ऑब्वियसली आप किसी पार्टी में गए हो अपने फ्रेंड्स या अपनी फैमिली के संग, तो वहाँ पे आप हैंडशेक करोगे उनके संग जो नए हैं, मतलब जिनको आप उस पार्टी में मिले हो, जिसको आप घर से साथ लेके गए हो, उससे तो आप हैंडशेक करोगे नहीं, ऑब्वियसली बात है. वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया उन्होंने. नो वन शुक हैंड विद हिमसेल्फ और हरसेल्फ, मतलब ना ही आप खुद से हैंड शेक करोगे, ना ही आप अगर अपने घर से अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड के गए हो तो उससे हैंड शेक करोगे वहाँ पार्टी में, क्योंकि वो तो आपके संग आपके साथ घर से गया है. सो नो वन शुक हैंड विद हिमसेल्फ और हरसेल्फ और विद देयर पार्टनर, एंड नो वन शुक हैंड विद द सेम पर्सन मोर देन वंस, मतलब अगर ए और बी ने हैंड शेक किया है तो सिर्फ एक बार, ऑब्वियसली थोड़ी कि 10 बार मिलोगे तो 10 बार हैंड शेक होगा. अगर एक, जब आप फर्स्ट टाइम किसी बंदे से मिल रहे हो, किसी पर्सन से मिल रहे हो, दैट टाइम यू विल बी शेकिंग योर हैंड वंस, ठीक है. After all hand checking was completed, suppose you asked each person, including your partner, how many hands they had shaken. Each person gave a different answer. How many hands did your spouse shake? थोड़ा सा टफ है, हम इसको क्या करते हैं, लेट्स टेक अ स्मॉल एग्जाम्पल. स्मॉल एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है. लेट्स से दैट वी आर हैविंग 2 मैरिड कपल्स. फर्स्ट केस हमने लिया कि वी आर हैविंग 2 मैरिड कपल्स. तो अब 2 मैरिड कपल्स हैं तो क्या होगा? पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं हैंडशेक के? मैक्सिमम हैंडशेक कितना होगा? कैसे हम ले, सपोज हमने लिया ए और ए डैश एक कपल हो गया और एक कपल हो गया बी एंड बी डैश, करेक्ट. अब वो क्या बोल रहे हैं? दे हैव क्लियरली सेड दैट ए जो है वो खुद से हैंडशेक नहीं कर सकता और अपनी वाइफ से हैंडशेक नहीं कर सकता. मतलब ए ने क्या किया? ए ने या तो बी के संग हैंडशेक किया और ए ने बी की वाइफ के संग हैंडशेक किया, बी स्टार मतलब बी डैश. तो मैक्सिमम कितने हैंडशेक हो पाएंगे? मैक्सिमम हो पाएंगे 2 हैंडशेक्स, अगर हम 2 मैरिड कपल्स की बात करें, बिकॉज आप अपने पार्टनर के संग हैंडशेक नहीं कर सकते, आप खुद के संग हैंडशेक नहीं कर सकते, आप दूसरे के पार्टनर और दूसरे के संग हैंडशेक कर सकते हो. तो मैक्सिमम अगर 2 मैरिड कपल्स हैं, सो यू कैन शेक हैंड्स विद 2 पीपल. फिर बी और बी, व्हाट इज द, अगर हम डिग्री, लेट्स टॉक अबाउट डिग्री, है ना. ग्राफ हमने सपोज किया कि वी हैव ड्रॉन दिस ग्राफ ओवर हियर. व्हाट इज डिग्री ऑफ ए? डिग्री ऑफ ए इज 2. डिग्री ऑफ बी इज 1. बी डैश, डिग्री ऑफ बी डैश इज 1 एंड डिग्री ऑफ ए डैश इज 0. तो अब अगर सपोज कोई एक्स एक पर्सन है, एक्स ने पूछा ए से कि कितने लोगों के संग यू हैव शेकन हैंड्स, ठीक है. एक्स इज अ रैंडम पर्सन, एक्स इज आस्किंग ए कि फ्रॉम हाउ मेनी पीपल, कितने लोगों के संग आपने हैंडशेक किया, तो ए विल से 2, ठीक है. फिर इसको हम लिख देते हैं पॉसिबल हैंडशेक्स. ठीक है. ए विल से 2. व्हाट बी विल से? बी विल से 1, क्योंकि बी ने तो सिर्फ एक के संग हैंडशेक किया.
what B dash will say, B dash will also say 1, what A dash will say, A dash will say 0. तो अगर दो मैरिड कपल्स हैं, सो पॉसिबल हैंडशेक्स कितनी हो गई, या तो दो, मतलब दो, या फिर एक, या फिर 0. यस और नो, करेक्ट. ये हो गया पॉसिबल हैंडशेक्स. अगर हम बात करें 3 मैरिड कपल्स की, राइट, हम इसी केस को आगे फर्दर बढ़ा देते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट 3 मैरिड कपल्स. बिकॉज क्या है यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा हुआ है इन दिस क्वेश्चन, यहाँ पे क्लियरली दे आर सेइंग आफ्टर ऑल हैंड चेकिंग वाज कंप्लीटेड सपोज यू आस्क्ड ईच पर्सन इंक्लूडिंग योर पार्टनर हाउ मेनी हैंड्स दे हैड शेकन, ईच पर्सन गेव अ डिफरेंट आंसर. क्लियरली मेंशन है यहाँ पे कि हर इंसान का जो आंसर है वो अलग है, ईच पर्सन इज गिविंग अ डिफरेंट आंसर. तो यहाँ पे अगर मान लो सपोज बी डैश पूछता ए से तो 2, बी से पूछता तो 1 और ए डैश से पूछता तो 0. Right? So each and every one is giving a different answer. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, now we will talk about 3 married couples. So let's say अब 3 married couples कौन कौन से लिए हमने, 3 married couples हमने again we took A dash, B, B dash, C and C dash. ठीक है, now ए ने क्या किया, ए कैन नॉट शेक हैंड विद हिमसेल्फ और हिज वाइफ, सो ए ने बी के संग हैंड शेक किया, ए ने बी डैश के संग हैंड शेक किया, फिर ए ने सी के साथ हैंड शेक किया एंड देन ए ने सी डैश के संग हैंड शेक किया. तो मैक्सिमम कितने हैंड शेक्स हो गए यहाँ पे, 4. ठीक, अब बी ने सपोज बी कैन नॉट शेक हैंड विद बी डैश एंड एवरीबडी हैज टू गिव डिफरेंट आंसर्स. यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ईच पर्सन गेव अ डिफरेंट आंसर. सो व्हाट वी कैन से, अब 0 ए डैश की सपोज 0, अगेन 0. बी ने कितने हैंड शेक किए, बी ने शेक किया एक ए के साथ, फिर एक बी ने हैंड शेक किया सी के साथ, करेक्ट, एंड एक बी ने हैंड शेक किया सी डैश के साथ. तो कितने हो गए, 1 2 3. बी की कितनी हो गई, 3. सी ने कितने हैंड लोगों के संग हैंड शेक किया, 2, करेक्ट. सी डैश ने कितने लोगों के संग किया, 2. बी डैश ने कितने लोगों की संख्या, 1 एंड ए डैश विद 0. सो पॉसिबल हैंडशेक्स कितने हो गए यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर केस, पॉसिबल हैंडशेक्स हो गए 0 1 2 3 एंड 4. 3 मैरिड कपल्स मतलब कितने लोग हुए, 3 × 2 दैट इज 6 पीपल हैं अगर, तो मैक्सिमम हैंडशेक्स कितने हो रहे हैं, 0 1 2 3 4. यस और नो, करेक्ट. तो छोटे एग्जाम्पल से पहले समझेंगे, फिर हम बड़े एग्जाम्पल की तरफ मूव करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है उसकी तरफ. ठीक है, सो अब फ्रॉम these 2 examples, that is 2 married couples and 3 married couples, what we come to know is कि 0 and 2 they are one married couple. कैसे, मतलब कि अगर if A has shaken hands with 2 people and A prime or A dash has not shaken hand with any person, this means that 0 and 2 forms a pair. इसमें क्या हो गया, 0 and 4 एक पेयर हो गया, 0 and 4, फिर 1 and 3 एक पेयर हो गया, एंड 2, बोलो मतलब, या फिर एक इसमें जैसे आपका 1, 1 हो गया. सो दीज आर योर मैरिड कपल्स, करेक्ट. अगर हम इस ग्राफ के थ्रू समझे, और ये हमने क्यों लिया है, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, व्हाई वी हैव टेकन दिस, बिकॉज क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ईच पर्सन इज गिविंग अ डिफरेंट आंसर. तो अगर ए जो है वो ए डैश से पूछेगा तो इट विल गिव आंसर 0, बी से पूछेगा इट विल गिव आंसर 3, बी डैश से पूछेगा इट विल गिव आंसर 1, है ना. अपनी वाइफ से नहीं पूछना है बस, ठीक है. अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कितने पीपल हैं, टोटल 4 मैरिड कपल्स. तो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक एन एग्जाम्पल, वी विल ट्राई टू ड्रॉ फॉर 4 कपल्स, है ना, जिससे कि वी आर एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली. 4 कपल्स मतलब ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी एंड डी डैश. ठीक है, नाउ लेट्स सपोज दैट नाउ वी आर ड्राइंग, ए ने सपोज हैंडशेक किया बी के साथ, फिर ए ने हैंडशेक किया सी के साथ, एंड फिर ए ने हैंडशेक किया डी के साथ,
देन ए ने हैंडशेक किया बी डैश के साथ, फिर ए ने हैंडशेक किया सी डैश के साथ, एंड देन ए ने हैंडशेक किया डी डैश के साथ. कितने हुए केसेस? 1 2 3 4 5 6. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बी. अब बी ने जब किया तो बी ने एक हैंडशेक किया ए के संग, फिर बी ने एक हैंडशेक किया सी के संग, फिर बी ने एक हैंडशेक किया डी के साथ, फिर बी ने एक हैंडशेक किया सी डैश के साथ, और फिर बी ने हैंडशेक किया डी डैश के साथ. सो कितने हो गए? 1 2 3 4 5. इसके केसेस हो गए 5. सो सिमिलरली जब आप पूरा बना लोगे तो एक आंसर आएगा 0 1 2 3 4 5 एंड 6. Yes or no? So everybody is giving different answers. 0 1 2 3 4 5 6. हर किसी ने different answer दिया है. ठीक है. सो बिकॉज ऑब्वियसली जब आप 8 पीपल हो, 8 में से एक कोई बंदा बाकी 7 रिमेनिंग लोगों से पूछ रहा है एंड 7 आर गिविंग डिफरेंट आंसर्स, तो यही 7 डिफरेंट आंसर्स हैं जो बन सकते हैं. ठीक है. आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट अगेन क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है. यहाँ पे दे आर सेइंग दैट सपोज यू आस्क ईच पर्सन इंक्लूडिंग योर पार्टनर how many hands they had shaken, each person gave a different answer. तो इसीलिए यहाँ पे हमने लिया है these different answers are a possibility because A जो है वो 6 बोलेगा, B जो है वो 5 बोलेगा, C जो है वो 4 बोलेगा, D जो है वो अगेन कोई नंबर बोलेगा, D डैश कुछ और नंबर बोलेगा, है ना. सो एक जना जो पूछ रहा है उसको छोड़ के बाकी 7 people will give different answers. Now we know that what are the pairs. Pairs क्या क्या है? Pairs है हमारे पास 0,6, राइट, 1,5, 2,4 और अनपेयर्ड क्या रह गया? यहाँ पे अनपेयर्ड रह गया आपका 3. तो ये है आपका स्पाउस. अब यहाँ पे हो सकता है कि ए ने पूछा हो, ठीक है, तो वो 0 होता अनपेयर्ड वाला. बी अगर पूछता तो बाकी कोई नंबर बी डैश का अनपेयर्ड रहता. यहाँ पे क्या है? अनपेयर्ड क्या रह गया है? यहाँ पे अनपेयर्ड रह गया है वैल्यू 3. सो ये आपका वाइफ, आपका जो भी आपका हस्बैंड वाइफ जो भी है वो है ये. सो इन दिस व्हाट दे आर सेइंग, हाउ मेनी हैंड्स डिड योर स्पाउस शेक? आपके स्पाउस ने कितने हैंड शेक किए? 3 हैंड शेक किए बिकॉज 3 वॉज द ओनली नंबर दैट वॉज लेफ्ट अनपेयर्ड. तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन होता कितने लोगों ने, कितने हो गए? सो 0 1 2, तो 0 और 2, तो 1 जो होता 1 इसका आंसर होता. यहाँ पे क्या आंसर होता? यहाँ पे आंसर होता 2. यहाँ पे क्या आंसर आ गया? यहाँ पे आंसर आ गया आपका 3. सो दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग दिस क्वेश्चन. ये हमने सिंपल सा क्यों, अब इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि हर एक एवरी पर्सन इज गिविंग अ डिफरेंट आंसर. अगर सेम होता तो हो सकता है कि 2 लोगों ने किसी के संग हैंडशेक ना किया होता, 2 लोगों के 0-0 होते, तो दैट वुड हैव बीन अ डिफरेंट केस. ठीक है. सो आई सजेस्ट एवरीवन कि जिसको भी नहीं समझ में आया, जिसको भी थोड़ा सा भी डाउट है इस क्वेश्चन में, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली जस्ट वॉच दिस वीडियो अगेन, this particular part, and again if you're not able to understand then you can just simply write in the comment section. I'll try to make you understand the entire question again. ठीक है. But I think with the help of 2 married couples, 3 married couples example, you will be able to understand the point. Okay. So moving back to the part, the question. So ये हमने कर लिया. ठीक है. Next question. What is the next question? Okay, this is also very easy. Consider the following conditional code which returns a boolean value. ठीक है. क्या वो कह रहे हैं कि if x is greater than 25 and y is greater than 100, मतलब अगर x की वैल्यू 25 से बड़ी है, मतलब x is suppose 26 and y suppose 105, तो क्या वैल्यू आ रही है? वैल्यू आ रही है false. ठीक है. Else if x is less than equal to 25, मतलब कि अगर x suppose 25 है and y is less than equal to 100 और y है 100, तो वैल्यू क्या आ रही है? ट्रू. या फिर x is suppose 22 and y is suppose 95, then वैल्यू क्या आ रही है? ट्रू. करेक्ट. Else if x is greater than 25, again x is 26 and y is less than equal to 100, y is 95, तो वैल्यू क्या आ रही है? वैल्यू आ रही है false. These are the 3 conditions given to us. Condition 1 is x is greater than 25 and y is greater than 100, मतलब ये condition. तो हमें क्या मिल रहा है? false. x is less than equal to 25 and y is less than equal to 100, मतलब ये 2 possibilities अगर हैं तो हमें क्या वैल्यू मिल रही है? true. Else if x is greater than 25 and y is less than equal to 100, then we getting false.
एल्स रिटर्न ट्रू, बाकी सब केसेस में आपके ट्रू आ रही है, ठीक है। Simplify it by filling in the following blank with a single boolean expression without changing the behavior of the conditional code. तो क्या आपकी क्या ऐसी क्या लाइन आप फिल करोगे इस ब्लैंक में कि इफ डैश, अगर ये कंडीशन हो रही है तो रिटर्न ट्रू। क्या किस पे हम ट्रू रिटर्न कर रहे हैं, अब हम ये चेक करेंगे कि किस वैल्यू पे हम ट्रू रिटर्न कर रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं ट्रू रिटर्न करने की, ठीक है। तो इफ यू सी ओवर हेयर, अगर हम चेक करें y को, ठीक है, पहला y है 105, फॉल्स आ रहा है, ठीक है। y की वैल्यू है 100, यहाँ पे 95 ट्रू आ गया, बट यहाँ पे जैसे ही वैल्यू 95 हुई फॉल्स हो गया। सो वी हैव टू लुक, y को हम नहीं देख सकते बिकॉज y की एक वैल्यू जो अगर हमने वी वर थिंकिंग कि y इज ग्रेटर देन 100 तो वो फॉल्स दे रहा है, हमने फिर अज्यूम किया कि y जब लेस देन या इक्वल टू 100 है वो ट्रू आ रहा है। बट इस वाले केस में, थर्ड केस में, अगर हम इसको बोलें फर्स्ट सेकेंड एंड इन थर्ड केस वी कैन क्लियरली सी अगर y इज लेस देन इक्वल टू 100 देन वी आर गेटिंग फॉल्स। लेट्स चेक फॉर x, ठीक है। अब हम x को अगर चेक करें, इफ यू चेक फॉर x व्हाट वी कैन सी ओवर हियर इज x इज 26, x 26 है, क्या मिल रहा है हमें, फॉल्स मिल रहा है। x 25 है, ट्रू मिल रहा है। x 22 है, ट्रू मिल रहा है। x 26 हुआ, अगेन फॉल्स मिल गया। मतलब कि अगर x इज लेस देन इक्वल टू 25 है तो व्हाट वी आर गेटिंग ट्रू। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, वी विल फिल x इज लेस देन इक्वल टू 25। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन है जो आप फिल कर दोगे। क्लियरली बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। y और x वो आपसे पूछ रहे हैं कि इस पूरे कोड को, ये जो उन्होंने पूरा ये इतना इफ एल्स इफ लगा के जो कोड लिखा है इसको इन्हें शॉर्ट करना है कोड को, ठीक है। नाउ व्हाट दे आर सेइंग कि विदाउट चेंजिंग द एक्चुअल बिहेवियर, विदाउट चेंजिंग द एक्चुअल वर्किंग ऑफ दिस कोड, यू हैव टू रिड्यूस दिस कोड। बेसिकली एक सिंगल बुलियन एक्सप्रेशन में आपको इस कोड को रिड्यूस करना है। तो क्या किया आपने, व्हाट यू डिड, यू सिंपली टुक दी एग्जाम्पल्स और यू सिंपली टुक दी पार्ट ऑफ दी क्वेश्चन, ठीक है। आपने कंडीशंस ले ली बेसिकली कि अगर x ग्रेटर देन 25 मतलब 26 है और y ग्रेटर देन 100 105 है तो फॉल्स है, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है कि x इज लेस देन इक्वल टू 100 एंड y इज लेस देन इक्वल टू 100 तो ट्रू है। थर्ड के लिए क्या है कि अगर x इज ग्रेटर देन 25 और y भाई भले ही 100 से कम हो तब भी वो फॉल्स दे रहा है। इसका मतलब ट्रू कब आ रहा है, ट्रू सिंपली आ रहा है अगर x इज लेस देन इक्वल टू 25 है। y की कंडीशन को वो चेक कर रहा है बट x को ज्यादा डिपेंड कर रहा है कि इफ x इज लेस देन इक्वल टू 25 आई हैव टू गिव ट्रू, भले y की वैल्यू कुछ भी हो। सो वही हमने किया है कि इफ x इज लेस देन इक्वल टू 25 रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स। ठीक, ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज द फास्टेस्ट, तो मैं आपको बताया था रजिस्टर मेमोरी इज द फास्टेस्ट। अगर रजिस्टर एग्जाम्पल नहीं दिया है क्वेश्चन में, रजिस्टर आपको नहीं मेंशन किया है, इन दैट केस यू विल टेक दी कैश मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, द मेमोरी साइज फॉर n एड्रेस लाइंस एंड m डेटा लाइंस। तो मैं आपको बताया था कि इसका फॉर्मूला होता है 2 to the power एड्रेस लाइंस मल्टीप्लाई बाय डेटा लाइंस, ये इसका फॉर्मूला है इस क्वेश्चन का, ठीक है। सो 2 to the power एड्रेस लाइंस कितनी हो गई, दैट इज 2 to the power n मल्टीप्लाई बाय m। तो ये इसका आंसर हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, 2 to the power n into m, ठीक है। फॉर्मूला ध्यान रखना, 2 to the power एड्रेस लाइंस मल्टीप्लाई बाय डेटा लाइंस। नेक्स्ट के मैप है, सिंपल सा के मैप है, कुछ भी नहीं है इसमें। के मैप में सिंपल वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। क्या करेंगे सबसे पहले वील मेक अ के मैप। फोर वेरिएबल के मैप है, तो 4 वेरिएबल्स हमने ड्रॉ कर लिया ऐसे के मैप। आई होप यू ऑल नो हाउ टू ड्रॉ के मैप एंड हाउ टू फिल द वैल्यूज इनसाइड द के मैप, है ना, वो तो नहीं बताने की जरूरत है, ठीक है। फिर क्या वेरिएबल्स हैं, ए बी सी डी। सो हम इसको, मैंने आपको बताया कैसे लर्न करना है। दिस विल बी ए बार बी बार, दिस विल बी ए बार बी, दिस विल बी ए बी एंड दिस विल बी ए बी बार, दिस विल बी सी बार डी बार, दिस विल बी सी बार डी, दिस विल बी सी डी एंड दिस विल बी सी डी बार। ये लर्न कर लेना, इट्स विल बी इजी। मतलब कंसेप्ट तो ये है कि 0 0 एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक वेरिएबल चेंज होगा, 0 0, फिर यहाँ पे हम चेंज किया 0 1, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसे 1 0 क्यों नहीं किया हमने, बिकॉज दोनों वेरिएबल्स चेंज हो जाएंगे। अगर मैं इसे 0 को 1 कर दूं और इस 1 को 0 कर दूं,
both the variables will change, right? So this should not happen, ये पॉसिबल नहीं है। एक नेक्स्ट हर मूव में सिर्फ एक ही वेरिएबल चेंज होगा आपका। जैसे यहाँ पे 0 0 था तो ये क्या हो गया, 0 1 हो गया, तो ये वाला वेरिएबल चेंज हुआ। यहाँ पे हमने क्या किया, 1 1 1 1 से मतलब हमने ये 0 चेंज कर दिया, और फिर यहाँ पे 1 0। तो ये तरीका है टू लर्न, ठीक है। ये सेल नंबर 0, ये सेल नंबर 1, ये सेल नंबर 2, ये सेल नंबर 3, ये सेल नंबर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। सो अब क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो क्या क्या वैल्यूज हैं, 0 पे है तो 0 में 1 आ गया, 2 है तो 2 पे 1 आ गया, 5 है यहाँ 1 आ गया, 7 1, 8 है यहाँ 1 आ गया, 10 यहाँ 1 आ गया, 13 यहाँ 1 आ गया एंड 15 यहाँ 1 आ गया, ठीक है। नाउ यू विल चेक फॉर दी पेयर्स। सबसे पहले व्हाट वी चेक, सबसे पहले वी चेक फॉर ऑक्टेट, ठीक है। सबसे पहले क्या चेक करते हैं हम, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ऑक्टेट बन रहा है या नहीं बन रहा है। एक मिनट, सॉरी, ठीक है। ऑक्टेट मतलब पेयर ऑफ 8, मतलब 8 वेरिएबल्स का कोई पेयर बन रहा है या नहीं बन रहा। सबसे पहले आप ये चेक करोगे ऑक्टेट के केस में। सबसे पहले हमने चेक किया फॉर ऑक्टेट, ऑक्टेट बन रहा है यहाँ पे। ऑक्टेट मतलब 8 का पेयर बन रहा है, नहीं 8 का पेयर नहीं बन रहा है। नेक्स्ट वी विल चेक फॉर क्वाड, क्वाड मतलब 4 का पेयर। तो एक तो 4 का पेयर ये बन गया, और एक 4 का पेयर 1 2 3 एंड 4 ये बन गया। सो क्या बना, ये क्या वेरिएबल्स क्या वैल्यूज आ गई, इसमें से हम कॉमन क्या है b, दिस इज b, एंड इससे कॉमन क्या है d, सो बी डी प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ गया b बार, सो b बार, एंड इन दो कॉलम से क्या कॉमन आ गया d बार, सो बी डी प्लस b बार d बार, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। सिंपल सा है। अगर क्वाड नहीं बन रहा होता तो आप क्या चेक करते, तो आप चेक करते पेयर, ठीक है। बट सिंस क्वाड बन रहा है तो इसलिए हम पेयर पे जाएंगे नहीं, क्वाड पे ही हमारा काम हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कह सकते हो आपकी थोड़ा सा समझने में होगा, हो सकता है मे बी, बट स्टिल क्या कह रहे हैं वो, कंसीडर एन अनपाइपलाइंड मशीन विथ 10 नैनोसेकेंड क्लॉक साइकिल्स, ठीक है। एक अनपाइपलाइन मशीन है, मतलब नॉन पाइपलाइन मशीन है जिसमें 10 नैनोसेकेंड्स लग रहे हैं क्लॉक साइकिल्स के। अब कितनी क्लॉक साइकिल्स हैं वो कैसे बताया इन्होंने, विच यूजेस 4 क्लॉक साइकिल फॉर ALU ऑपरेशन एंड ब्रांचेस। मतलब पहले तो आपका क्या आ गया ALU, ठीक है, फिर नेक्स्ट हो गया आपका ब्रांच, फिर नेक्स्ट हो गया आपका मेमोरी ऑपरेशन। ये 3 आपके ऑपरेशंस हो रहे हैं। ALU में कितनी क्लॉक साइकिल्स लग रही हैं, 4, विच यूजेस 4 क्लॉक साइकिल फॉर ALU ऑपरेशंस एंड ब्रांच, ब्रांच में कितनी लग रही हैं 4, एंड 5 साइकिल्स फॉर मेमोरी, मेमोरी में कितनी लग गई 5 साइकिल्स, ठीक है। Assume that the relative frequencies of these operations are 40%। इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है 40%, इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है 20%, एंड इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है 40%, ठीक है। तो अब क्या निकाल सकते हैं हम, व्हाट वी कैन कैलकुलेट इज, वी कैन कैलकुलेट टोटल क्लॉक साइकिल्स। कैसे करोगे, 40% ऑफ 4 at this point 40 into 4 plus 0.20 into 4 plus 0.40 into 5, कितना हो गया, ये हो गया आपका 4.4। तो कितनी क्लॉक साइकिल्स आ गई 4.4 क्लॉक साइकिल्स, और कितना टाइम लग रहा है 10 नैनो सेकेंड का। सो नॉन पाइपलाइन टाइम कितना हुआ, नॉन पाइपलाइन टाइम हुआ 10 नैनो सेकेंड इंटू 4.4, दैट इज 44 नैनो सेकेंड, यही हुआ। अब पाइपलाइन में क्या बोल रहे हैं वो, ड्यू टू क्लॉक स्क्यू एंड सेटअप पाइपलाइन लेट अस कंसीडर दैट मशीन एड्स 1 नैनो सेकेंड, क्या ऐड कर रहा है 1 नैनो सेकेंड ओवरहेड टू द क्लॉक। ये आपकी मशीन पाइपलाइन की बात हो गई, ठीक है। पाइपलाइन में क्या बोल रहा है वो, पाइपलाइन में वो बोल रहा है दैट
बिकॉज ऑफ क्लॉक स्क्यू एंड सेटअप पाइपलाइन जो है वो क्या कह रहा है, पाइपलाइन इज एडिंग अ ओवरहेड ऑफ 1 नैनो सेकेंड, किसमें, जो ओरिजिनल क्लॉक साइकिल था उसमें, जो क्लॉक टाइम था उसमें, तो कितना हो गया ये 11 नैनो सेकेंड। तो स्पीड अप तो इजी है, स्पीड अप कैलकुलेट करना, स्पीड अप होता है नॉन पाइपलाइन अपॉन पाइपलाइन, तो ये कितना आ गया आपका 4। तो दिस मीन्स क्या पूछ रहे हो क्वेश्चन में, हाउ मच स्पीड अप इज ऑब्जर्व इन द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन व्हेन अ पाइपलाइन मशीन इज कंसीडर्ड। तो अगर पाइपलाइन मशीन को कंसीडर कर रहे हो तो 4 टाइम्स स्पीड अप हो जाएगा आपका, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया 2। तो क्या किया, सिंपली कुछ नहीं है, पहले हमने नॉन पाइपलाइन मशीन का टाइम निकाला, हमने कैसे निकालते हैं टाइम, टाइम होता है n इंटू के आपकी बेसिकली नंबर ऑफ साइकिल्स होती हैं, क्लॉक साइकिल्स। तो यहाँ पे क्लॉक साइकिल्स हमें डायरेक्टली नहीं दी हुई थी, क्लॉक साइकिल्स हमें कैलकुलेट करनी थी यहाँ पे, कैसे, क्योंकि हमें ये दिया हुआ था कि एएलयू ऑपरेशंस पे कितनी साइकिल्स लग रही हैं, ब्रांचेस में कितनी साइकिल्स लग रही हैं, मेमोरी ऑपरेशन में कितनी साइकिल्स लग रही हैं, ये हो गई। फिर दे हैव गिवन अस फ्रीक्वेंसीज ऑल्सो। तो फ्रीक्वेंसी देने का मतलब सिंपली ये है कि हमें वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज फ्रीक्वेंसीज विद दीज क्लॉक साइकिल्स टू फाइंड दी विद दीज साइकिल्स टू फाइंड द क्लॉक साइकिल। ये जो हमें मेंशन किया है इन्होंने, ये मेंशन किया साइकिल्स। क्लॉक साइकिल कैसे निकालोगे, क्लॉक साइकिल निकालोगे टू व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दीज फ्रीक्वेंसीज विद दीज साइकिल्स। तो ये हमारी टोटल क्लॉक साइकिल आ गई। तो नॉन पाइपलाइन का टाइम क्या हो गया, क्लॉक साइकिल का जो टाइम है मल्टीप्लाई बाय क्लॉक साइकिल्स, 10 नैनोसेकंड मल्टीप्लाई 4.4 दैट इज 44 नैनोसेकंड। पाइपलाइन में क्या हुआ, पाइपलाइन में 10 नैनोसेकंड क्लॉक साइकिल्स तो थी, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने दे हैव नॉट मेंशन कि देयर इज अ सेपरेट clock cycle time for pipeline. They are simply saying due to clock skew and setup pipeline, let us consider that machine adds 1 nanosecond overhead to the clock. जो ओरिजिनल क्लॉक का टाइम है 10 नैनोसेकंड, उसी में कितना ओवरहेड ऐड हो गया 1 नैनोसेकंड का। तो यहां से हमने फाइंड किया ये 11 नैनोसेकंड और हमें आंसर मिल गया, बिकॉज स्पीड अप इज नॉन पाइपलाइन टाइम एग्जीक्यूशन टाइम डिवाइड बाय पाइपलाइन एग्जीक्यूशन टाइम, दैट इज 44 by 11 दैट इज 4। ठीक है, इजी है। Next question, machine language is a very easy, is a low level language. हाई लेवल क्या हुई आपकी C++, पाइथन, जावा, ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। मशीन लेवल लैंग्वेज क्या हो गई आपकी, वो हो गई आपकी लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट द डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स का एक तो साइंड होता है, करेक्ट। साइंड में क्या होता है, साइंड में होता है कि जब हमारा जो LSB है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो क्या डिफाइन करता है, वो बताता है कि या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और दूसरा होता है अनसाइंड। अनसाइंड में से कुछ नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं होता, सिंपल सा आपका नंबर है। तो नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव व्हेन क्वालिफायर अनसाइंड इज यूज, करेक्ट, बिकॉज अनसाइंड में नेगेटिव का कोई सीन ही नहीं है, बिकॉज साइंड में तो ये आपकी जो LSB है ये आपको बताती है कि अगर ये 0 है तो नंबर पॉजिटिव है, अगर 1 है तो नंबर नेगेटिव है। बट अनसाइन में तो कुछ है ही नहीं, अनसाइन में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। द नंबर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव व्हेन क्वालिफायर साइन इज यूज्ड, करेक्ट। अभी बताया LSB से बता सकते हो कि 0 या 1 है। नो, ये MSB हुई, सॉरी आपकी MSB हुई, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब आपकी जो फर्स्ट बिट होती है फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे समझ लो। ठीक है, अगर ये आपका 4 बिट का है तो ये वाली जो बिट है आपकी वो डिफाइन करती है कि वेदर योर नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर थर्ड है, रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर साइन डेटा टाइप इज मोर देन दैट ऑफ अनसाइंड। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, देखो, अनसाइंड इंटीजर्स रेंज फ्रॉम 0 टू समथिंग अबाउट 4 अराउंड, दैट इज 4 बिलियन in 32-bit integers. The signed version ranges from -2 to +2, around -2 to +2 billion, जो कि कितना हो गया 4 बिलियन ही हो गया। The range is same but the values are shifted on the number line. तो इसलिए रॉन्ग आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, मतलब जो स्टेटमेंट रॉन्ग है वो है ऑप्शन नंबर 3। 4 क्या है, द लेफ्ट मोस्ट बिट, हाँ मैं सही थी, अनसाइंड डेटा टाइप इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द वैल्यू, करेक्ट। यहाँ पे जो आपकी ये LSB है दैट इज जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये आपको बताती है कि इसका साइन क्या है, मतलब नेगेटिव है पॉजिटिव है। बट अनसाइन में अगर वो 0 है तो ये, अगर ये है 0 0 0 तो ये वैल्यू है आपकी 0, और अगर ये 1 0 0 है तो ये वैल्यू है आपकी 8।
ये तो जो LSB है ये क्या हो जाती है, ये वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे LSB किसको रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है कि वैल्यू नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव। सो विच इज फॉलोइंग इज रॉन्ग, थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, द रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर साइन डेटा टाइप इज मोर देन दैट ऑफ अनसाइंड डेटा टाइप्स। ठीक है, next question, if a constructor date is declared explicitly and has to be defined outside the class, मतलब हमने एक कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किया है और उसको हम डिफाइन कर रहे हैं आउटसाइड द क्लास, तो क्या करेक्ट होगा। सबसे पहले व्हाट इज द कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन whose task is to initialize the object of the class। ठीक है, क्या करता है कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर बेसिकली इनिशियलाइज करता है ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे जिससे कि जब आप पढ़ो तो आपको याद रहे। तो कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेस द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ठीक है, तो अगर कंस्ट्रक्टर को आप डिफाइन कर रहे हो आउटसाइड द क्लास, ठीक है, तो आपको क्या यूज करना पड़ता है, इफ यू आर डिफाइनिंग द कंस्ट्रक्टर आउटसाइड द क्लास, in that particular case you have to use what, you have to use scope resolution operator। ठीक है, अगर you are basically if you are defining your constructor outside the class, in that case you will use this scope resolution operator। ठीक है, जो इन्होंने यहाँ पे यूज किया हुआ है डेट, ये जो आपका है ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, so constructor can be defined outside the class but it has to be declared inside the class। ठीक है, defined outside the class is correct but डिक्लेयर जो करोगे आप कंस्ट्रक्टर को, डिक्लेयर वो करोगे सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर, डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास। ठीक है, सो कंस्ट्रक्टर जो है इट कैन बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास बट इट हैज टू बी डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास। और करेक्ट मेथड क्या है, वो है इसका ये डेट, जो आपका कंस्ट्रक्टर का नेम है या जो क्लास का नेम है, स्कोप रेजोल्यूशन, फिर क्लास का नेम और फिर उसका फंक्शन, दैट इज जो भी इसका मेथड है, पैरामीटर है, वेरिएबल है, जो भी है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। कंस्ट्रक्टर ऑलवेज हैज टू बी डिफाइंड इनसाइड द क्लास, नहीं, कंस्ट्रक्टर ऑलवेज हैव टू बी डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास। डिफाइन आप कर सकते हो उसे क्लास के बाहर बट डिक्लेयर उसे हमेशा क्लास के अंदर ही करोगे। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ दिस सेशन टू कंटिन्यू। अब इसमें आपने नहीं भी पढ़ा तब भी आप पढ़ सकते हो। व्हेन अ यूजर क्विट्स अ ब्राउजर, अगर ब्राउजर से ही क्विट कर जाओगे तो सेशन कैसे कंटिन्यू होगा, तो ये तो इसका आंसर है नहीं। व्हेन द यूजर लॉग्स आउट एंड इज इनवैलिडेटेड बाय द सर्वलेट, अगर यूजर ने लॉग आउट कर दिया है तो भी आप सर्वर सेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकते। व्हेन दिस सेशन इज टाइम्ड आउट ड्यू टू इनएक्टिविटी, तब भी नहीं कर सकते, अगर टाइम आउट हो गया तो भी आप सेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकते। व्हेन द यूजर रिफ्रेशेस द ब्राउजर एंड देयर इज अ पर्सिस्टेंट कुकी, इन दैट केस ओनली यू कैन अलाउ द सेशन टू कंटिन्यू। जब यूजर ने रिफ्रेश किया, खाली जब ब्राउजर को रिफ्रेश करें तभी आप सेशन को अलाउ कर सकते हो कि वो कंटिन्यू हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ओवरफिटिंग इज एक्सपेक्टेड व्हेन वी ऑब्जर्व दैट। सी ओवरफिटिंग क्या होता है, ओवरफिटिंग बेसिकली क्या होता है कि हमें एक एक्यूरेट प्रिडिक्शन मिल रही है फॉर ट्रेनिंग डेटा। ठीक है, बट जैसे ही व्हेन वी आर मूविंग टू टेस्टिंग डेटा द प्रिडिक्शन इज नॉट वर्किंग, द मॉडल इज नॉट वर्किंग। ठीक है, मतलब एक्यूरेट प्रिडिक्शन मॉडल फॉर द ट्रेनिंग डेटा बट नॉट फॉर टेस्टिंग डेटा, ये कह सकते हो। सो ओवरफिटिंग इज एक्सपेक्टेड व्हेन वी ऑब्जर्व दैट ट्रेनिंग इटरेशंस ऑन ट्रेनिंग सेट तो डिक्रीज हो रही है, मतलब ट्रेनिंग सेट में आप डिक्रीज हो रही है लेकिन टेस्ट सेट में क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रही है। तो ऑप्शन इज करेक्ट नंबर 2। ओवरफिट मतलब कि आपका जो डेटा है, जो आपका ट्रेंड डेटा है, ऑब्वियसली आई होप यू ऑल नो कि डेटा को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ट्रेंड और टेस्ट। ठीक है, तो ओवरफिटिंग के केस में क्या होता है कि ट्रेंड में तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, मतलब 95% आ रहे हैं, लेट्स से 96% एक्यूरेसी आ रही है, बट जब हम उसी मॉडल को टेस्ट पे ले जाते हैं तो हमारी एक्यूरेसी हो जाती है 20%,
30%. सो इन दैट केस वी से दैट ओवरफिटिंग हो रही है, मतलब ट्रेनिंग सेट में तो एरर नहीं आ रही है, लेकिन टेस्ट सेट में जो एरर है वो बढ़ गई है. ओके. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. अब इसमें क्या है? A candidate key is a minimal set of one or more attributes that taken collectively allows us to uniquely identify any entity in the entity set. Correct? ये तो सही statement है एकदम. A candidate key for which no proper subset is also a candidate key is called a super key. ये गलत है because a candidate key जो है वो एक proper subset है super key का. ठीक है. सो ये जो आपका स्टेटमेंट अ सुपर की फॉर विच नो प्रॉपर सबसेट इज ऑल्सो अ सुपर की इज कॉल्ड कैंडिडेट की, ये स्टेटमेंट आपका सही है, बट ये जो स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर 2 ये गलत है. कैंडिडेट की इज बेसिकली अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सुपर की. A super key is a set of one or more attributes that taken collectively allows us to uniquely identify any entity in the entity set. ये भी करेक्ट है. ठीक है. तो गलत आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2. Consider the two relations below. The primary keys are underlined. So एक रिलेशन है एम्प्लॉय, एक है डिपार्टमेंट, EID और DID. ठीक है. आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल फॉरेन की. अब क्या हो सकता है? EID, ई नेम. अब यहाँ पे क्या देखो, अगर यहाँ पे EID जो है वो प्राइमरी की है फॉर एम्प्लॉय, तो अगर इफ एनी प्राइमरी की इज प्रेजेंट इन एनी अदर टेबल, ठीक है, इफ एनी प्राइमरी की इज प्रेजेंट इन एनी अदर टेबल, मतलब कोई भी प्राइमरी की है अगर वो किसी और टेबल में एक कॉमन एट्रीब्यूट की तरह एग्जिस्ट कर रही है, तो इन दैट केस वी से दैट इट इज अ फॉरेन की. मतलब ये अगर प्राइमरी की इस टेबल की ये प्राइमरी की है इफ इट इज एग्जिस्टिंग इन सम अदर टेबल एज अ नॉर्मल की. ठीक है. मतलब जैसे यहाँ पे ये है DID. DID क्या है? DID इज अ की इन डिपार्टमेंट, बट एम्प्लॉय टेबल में वो क्या है? वो एक नॉर्मल की तरह बिहेव कर रही है. सो दिस DID इज अ फॉरेन की, और सिर्फ यही एक फॉरेन की है बिकॉज EID इज अ प्राइमरी की इन एम्प्लॉय बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन डिपार्टमेंट. सो द फॉरेन की इज only DID. That is option number 2. ठीक है. Next, which of the following statement is correct according to the following instance of a relational schema RXYZ. तो आपको बताया था कि एक अगर वन जो है वो ए को डिटरमाइन कर रहा है इन वन ऑफ द रोज और वन ऑफ द टपल्स, तो हर टपल में वन जो है वो किसको डिटरमाइन करे? ए को. ऐसा ना हो कि किसी भी टपल में वो वन जो है वो सी को डिटरमाइन कर दे, देन इट विल नॉट बी अ रिलेशन स्कीमा. करेक्ट रिलेशन स्कीमा नहीं होगा. बट हाँ, अगर ऐसा है कि वन इज डिटरमाइनिंग ए, वन इज डिटरमाइनिंग ए एंड टू इज ऑल्सो डिटरमाइनिंग ए, देन दिस इज ओके. दिस इज ओके. ठीक है. सो X2Y है, वन इज डिटरमाइनिंग वन, वन इज डिटरमाइनिंग वन, टू इज डिटरमाइनिंग वन, थ्री इज डिटरमाइनिंग वन. तो ये तो आपका करेक्ट है. Z2X, A is determining 1, correct. A is determining 1, correct. B is determining 2, correct. But B is determining 3. ये आपका गलत हो गया. बिकॉज यहाँ पे B जो है वो 2 को भी डिटरमाइन कर रहा है और 3 को भी डिटरमाइन कर रहा है. दैट इज नॉट पॉसिबल. Y2Z, 1 determining A, 1 determining A, 1 determining B. This is wrong. Z2X हम पहले ही रॉन्ग प्रूव कर चुके हैं. X2Z, 1A, 1A, 2B, 3B. ये आपका करेक्ट है. ठीक है. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3. ओके. Next, in Linux operating system, when dash is invoked, it is passed a set of flags that determine how much sharing is to take place between parent and child. इसका आंसर फोक नहीं है. ठीक है. फोक जो है बेसिकली इट क्रिएट्स चाइल्ड. फोक क्या करता है? फोर्क क्रिएट करता है चाइल्ड को. फोर्क क्रिएट चिल्ड्रेन. यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कितनी शेयरिंग हो सकती है बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड. ये कौन डिटरमाइन करता है? वो डिटरमाइन करता है क्लोन. ठीक है. क्लोन डिटरमाइंस कि हाउ मच शेयरिंग विल टेक प्लेस बिटवीन द पेरेंट एंड चाइल्ड. फोर्क का काम है सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड को क्रिएट करना. ठीक है. नेक्स्ट, main function of microkernel is to provide a communication facility between the dash program and various dash that are also running in user space. तो इसका आंसर है क्लाइंट एंड सर्विसेज. ये आपका पॉइंट है इसका. Interaction between client application and services running in user address space is established via message passing that helps to reduce the speed of microkernel execution.
तो मैसेज पासिंग के थ्रू क्लाइंट और उसकी जो सर्विसेज हैं वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है, मैसेज पासिंग के थ्रू। Okay. Consider an operating system capable of loading and executing a single sequential user process at a time. इसका क्या मतलब हुआ? सिंगल सीक्वेंशियल यूजर प्रोसेस मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकता है, एंड दैट टू सीक्वेंशियली, मतलब अगर ये सीक्वेंशियल है प्रोसेसेस के आने का, P1 P2 P3 P4, तो क्रिटिकल सेक्शन में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 1 जाएगा पहले, फिर 1 जब एग्जीक्यूट कर जाएगा फिर 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा एंड फिर 4 जाएगा। ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पे उन्होंने बोला है सिंगल सीक्वेंशियल यूजर प्रोसेस। जो ये सीपीयू है आपका वो ही ऐसा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ही इस टाइप का बना हुआ है। कैसा? कि इट विल एग्जीक्यूट अ सिंगल एंड सीक्वेंशियल प्रोसेस एट अ टाइम। क्या कह रहे हैं? The disk head scheduling algorithm used is first come first serve, ठीक है। If FCFS is replaced by shortest seek time first and the vendor claims 50% better benchmark results, what is the expected improvement in the IO performance of user program? कोई improvement होगी? कोई भी improvement नहीं होगी, 0% की improvement है। क्यों? Because the basic characteristic, the basic nature of the ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिंगल सीक्वेंशियल यूजर प्रोसेस। उसका खुद का मेन जो बेस नेचर है, जो बेस कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है कि इट विल एग्जीक्यूट अ सिंगल प्रोसेस एंड दैट टू सीक्वेंशियली। तो भले आप फिर FCFS यूज करो, SSTF यूज करो, कोई सी भी सी स्कैन कुछ भी डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज करो, कोई भी फर्क नहीं होगा। जो 50% का क्लेम है ये वेंडर क्लेम कर रहा है, एक्सपेक्टेड इंप्रूवमेंट कुछ भी नहीं होगी, बिकॉज द नेचर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज दैट इट विल टेक सिंगल प्रोसेस वन एट अ टाइम एंड दैट टू इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। पहले 1 आया तो 1 एग्जीक्यूट होगा, 2 आया फिर 2 एग्जीक्यूट हुआ, 3 आया 3 एग्जीक्यूट हुआ, इररिस्पेक्टिव कि 2 का जो बर्स्ट टाइम है, ये एग्जीक्यूटिंग टाइम है 15 नैनोसेकेंड्स है और 3 का 5 है। उसे मतलब नहीं है इससे। वाई? बिकॉज इट विल टेक सीक्वेंशियली, इट विल टेक द प्रोसेसेस सीक्वेंशियली, इसीलिए 0% इंप्रूवमेंट होगा। ये पॉइंट मेंशन करने का मतलब ही यही है, दे हैव क्लियरली मेंशन्ड दिस, कि जो आपका प्रोसेस है वो 1 एट अ टाइम सीक्वेंशियली ले रहा है प्रोसेस को, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। In the next session I'll continue with the next questions and we'll try to finish all these questions in the upcoming 1 or 2 sessions, ठीक है। Thank you everyone. Currently, there's a very amazing offer that is going on regarding UGC NET Computer Science. So if you want to enroll for the course, you can just install our Android app. For example, this is your Android app. So you can install from the Google Play Store. And you can see that we have so many different courses that are currently going on. And that's if you want to enroll for UGC NET Computer Science, so that you can see that the test series for UGC NET Computer Science is only 400 rupees. So you can just click on this, so they can find that yes, UGC NET Computer Science test series only for 200 rupees only. So there is up to 80% discount for all these students who want to enroll for this course. And if you want to enroll for UGC NET Computer Science, so you can see there's a very amazing offer that is going on. So in 3-month course, the fees is only 4,999 only. So, and even if, for example, if I go for a 1-year course, so that fees is only 5,999, and for 1-year course the fees is only 7,999. So this is a very amazing offer, and just enroll this course as soon as possible, because this offer is only valid till 30th of April. After this, the fees will hike. So please enroll as soon as possible.